یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب قوله تعالی کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین۔ یہ پوری آیت اس سورہ کے اندر دیکھیے، ترجمہ قرآن کے اندر جو عبارت یہاں نقل کی گئی ہے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ ایک ایسے پاکیزہ درخت کے مانند جس کی اصل ثابت ہے، جس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، آسمان کی طرف اوپر اٹھتی ہے۔ تؤتی اکلہا کل حین، اپنے پھل ہر وقت دیتا ہے، اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے۔ درسگاہ میں ہو تو ایمان کا پھل ملے گا آپ کو، مسجد میں ہو تو ملے گا، مدرسے میں ہو تو ملے گا، گھر میں ہو تو ملے گا، والدین کے گھر ہوں تو ملے گا، سسرال میں ہو تو ملے گا، بازار میں ہو تو ملے گا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ایمان کی چاشنی، ایمان کا پھل آپ کو نہ ملے۔ لیکن اگر ایمان کو سمیٹ کر رکھ دیں گے بستے میں، یہ کتابیں جو کچھ پڑھا لکھا تھا ایاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا۔ شادی ہوتے ہی بچیاں ایسا بھول جاتی ہیں کتابیں کہ کتاب تو کتاب، استاد بھی بھول جاتے ہیں، کس سے پڑھا ہم نے، یہ بھی بھول جاتے ہیں۔ کچوں میں گھر اور کھانے پکانے میں ایسا پھنس گئی کہ دین بھول گئی، پردہ بھول گئی، عالم ہونا بھول گئی۔ ایسا مت کرنا آپ لوگ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مثال دی ہے کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے۔ آپ ایمان کی جڑ کو جب مضبوط کر لیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا رازق کون ہے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ روزی دینے والا کون ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا عزت دینے والا کون ہے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ اولاد دینے والا کون، مشکل کشائی کرنے والا کون، حاجت روائی کرنے والا کون۔ تو ایسی صورت میں آپ اس پختگی کے ساتھ کہیں بھی رہیں گے، کوئی کچھ آپ کا بگاڑ نہیں سکتا۔ اور فرمایا فرعها فی السماء، اس کی شاخیں اوپر کی طرف آسمان میں ہیں۔ توتی اکلہا، اور یہ ایسا شجر طیبہ اپنے پھلوں کو دیتا ہے ہر حین، پر حین نہیں، ہر حین کے معنی ہمیشہ، سدا بہار۔ بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں جو سدا بہار ہوتے ہیں، آم سیزن کا ہوتا ہے، موسم کا ہوتا ہے جی۔ لیکن دیکھیے اب ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ آم بھی سدا بہار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی کیریاں آج بھی ملیں گی آپ کو، سبزی مارکیٹ میں جائیے کبھی، دیکھیے آپ کو کیریاں ملیں گی آم کی، لیکن یہ فصلی چیز ہے۔ موز کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنایا، سدا بہار بنایا، ہر موسم کے اندر ملتا ہے۔ سیب کو دیکھیے ہر موسم میں آ رہا ہے، انگور سیزن کا ہوتا ہے دیکھیے۔ تو لیکن ایمان یہ ایسی فصل ہے جو سدا بہار ہے، سمجھے، سدا بہار ہے۔ پھانسی کے پھندے پلٹکے ہوئے ہیں تو وہاں بھی ایمان کام آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ مصیبت میں پھنسے تو وہاں بھی اپنے ایمان کی چاشنی ملنی ہے، عیش اور آرام کے اندر ہے تو بھی ملنے والی ہے۔ تو اس درخت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بیان کیا، یہ کون سا درخت ہے؟ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین، ہر وقت تو سدا بہار۔ کھجور کا درخت سدا بہار ہوتا ہے، سمجھے۔ ابھی پھول آئے، پھل ہوا، پھل پکے، پھر پھول آئے، سالہ سال چلتا رہتا ہے۔ اچھا، آگے اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا گیا ہے۔ دیکھیے حدیث شریف، حدثنی عبیدہ بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اخبرونی بشجرۃ تشبہ او
कर्रजुल मुस्लिम ला यतहात्तु वरकुहा वला 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 तुती उकलहा कुल्ल हीन। वला का कर जाए तुती उकलहा कुल्ल हीन। इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आपने अचानक एक सवाल, किताबुल इल्म के अंदर हदीस गुजर चुकी है, आपने तवज्जो दिलाने के लिए अपने तालिब इल्मों के तवज्जो को आजमाने के लिए एक सवाल कर लिया। सवाल क्या किया कि बच्चों बताओ, एक ऐसा दरख्त है जो मुस्लिम आदमी की तरह, मुस्लिम आदमी से मुशाबहत रखता है, मुस्लिम आदमी से मुशाबहत रखता है, यानी वो मुसलमान जैसा है, उसका पत्ता नहीं झड़ता कभी, वला वला वला, वो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इशारा किया आपने। आप लोग बोलो क्या है, जल्दी बोलो। ये सामने बैठने वाले बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, कौन सा दरख्त है, जल्दी बोलो जी। सदाबहार। कौन सा सदाबहार? सदाबहार तो किसी फल में हो सकता है, जल्दी बोलो। किताबुल इल्म में पढ़े कि नहीं पढ़े? अभी नहीं आया, किताबुल इल्म में नहीं पढ़े। गुज़िश्ता साल मैं खुद पढ़ाया आपको, कह रहे कि नहीं पढ़े, भूल गए। खजूर का दरख्त है, बोलो किसका है? खजूर का। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं मेरे दिल में ये बात आई, मेरे दिल में ये बात आई कि अन्हा नखला, तो ये खजूर का दरख्त है। लेकिन देखा कि मेरे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अबू बकर सिद्दीक़ और उमर जैसे बड़े बड़े सहाबा बैठे हुए हैं और कुछ बात नहीं कर रहे हैं, खामोश हैं। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, करी तो अना तकल्लमा, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं बात करूं। फलम्मा लम यक़ूलु शयअन, जब इन बुज़ुर्गों ने कोई जवाब नहीं दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जवाब दिया। क्या? ये नखला, तो ये खजूर का दरख्त है। जिस नबी अलैहि सलाम ने जो फरमाया था ना कि एक दरख्त है जो मुस्लिम आदमी की तरह है, उसके पत्ते कभी झड़ते नहीं और ऐसा 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 है, इशारा कर दिया। तो पीछे हदीसों में किताबुल इल्म में गुजर चुका है कि सहाबे कराम जो सामने बैठे हुए थे शागिर्द, शजरतुल बवादी के जंगल के दरख्तों में घूमने लगे, यानी जहन दौड़ाने लगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन समझ में नहीं आया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर छोटे सहाबी हैं, छोटे बच्चों का जहन बहुत फास्ट होता है, फौरी उनके जहन में आ गया। लेकिन बताया क्यों नहीं कि बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, तो मैं शर्म की वजह से नहीं बोल सका। तो जब मजलिस ख़त्म हो गई तो मैंने अपने अब्बू से कहा, अब्बू या अबता, ऐ मेरे वालिद, अल्लाह की कसम जो जवाब नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है ना, यही जवाब बेइन्ही मेरे दिल में आ गया था। वल्लाहि लक़द वक़अ फ़ी नफ़्सी, मेरे नफ्स के अंदर सवाल जवाब वाक़े हो गया था, आ गया था, लेकिन मैंने देखा, लेकिन मैंने नहीं बताया। हज़रत उमर ने कहा, मा मनाअका अन तकल्लमा, बेटे तुम बताए क्यों नहीं, रसूलुल्लाह की मजलिस में बोले क्यों नहीं? तो कहने लगे, लम अराकुम तकल्लमूना, मैंने देखा कि आप लोग नहीं बता रहे हैं तो मैं शर्मा गया। फ़करी तो अन तकल्लमा, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं गुफ्तगू करूं हुजूर की मजलिस में जहाँ बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला, बाप का जज्बा क्या होता है, देखिए जी, बाप का जज्बा ये होता है कि मेरे बच्चे तरक्की करें, और बड़ों के मजलिस में जवाब दें तो दिल मचल जाता है। कहते हैं अल्लाह की कसम, अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में ये जवाब अर्ज़ कर दिए होते, जब रसूलुल्लाह पूछ रहे थे उस वक्त जवाब दिए होते, तो मेरे लिए ऐसी ऐसी चीज़ों से भी ज़्यादा पसंदीदा था। अरब के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें क्या थी, वो जिस पर बैठते हैं चार पहिए वाली गाड़ी ना, किसी के पास है बाइक आ गई तो अब तस्वर होता है कि अब कार लेंगे, कार अगर आ गई तो आम नहीं बल्कि वो जिस पर वो लोग चलते हैं।
लीडर लोग 1-1 करोड़ रुपए वाली उस पर चलेंगे, वो आ गई तो अब चलो उड़ेंगे अब। तो इंसान की ख्वाहिश कहीं रुकने वाली नहीं होती है। अरब के अंदर ये सुर्ख ऊँट जो होते थे नेमतों की इंतहा थी, समझे। आम लोगों के लिए वही बहुत बड़ी नेमत थी। अगर तुम हुजूर के सामने जवाब दे दिए होते तो ऐसी चीज़ों से भी ज़्यादा मुझे खुशी होती। आगे बाब आ रहा है, बाब क़ौलिही युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबित। अल्लाह ताला ईमान वालों को कौल साबित से कदम जमाएंगे। युसब्बितुल्लाहु, अल्लाह कदम को जमा देंगे, साबित कदम रखेंगे। किन लोगों को? ईमान वालों को। किसके ज़रिए से? कौल साबित के ज़रिए से। कौल साबित क्या है? कलमे तैयबा, कलमे तौहीद। जी, जब ईमान बन जाएगा तो उसके सीने पर पत्थर रखो, गले पर तलवार रखो, आग में डालो, वो कौले साबित नहीं, अल्लाह से कभी जय श्री राम नहीं बोल सकता। मर जाए, कट जाए, पिस जाए, लुट जाए, लेकिन कौले साबित से वो दस्तबरदार नहीं हो सकता। ये किन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया? युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनु, जो लोग ईमान लाए हैं अल्लाह ताला कौले साबित के ज़रिए से उनके कदमों को जमाएगा। लेकिन अगर मुसलमानों जैसे माहौल को पाया, मुसलमानों जैसा नाम रख लिया, मुसलमानों जैसे कपड़े पहनते हुए देखे, मुसलमानों जैसे कपड़े रख लिए, कोई तालीम नहीं, कोई तरबियत नहीं, कोई दीनदारी नहीं, हिंदुओं जैसे अमाल हो रहे हैं, हिंदुओं जैसे रस्म व रिवाज हो रहे हैं, नाम मुसलमानों का है, तहजीब हिंदुओं की है, बस काम चल रहा है। तो ऐसे लोगों को लालच देंगे, इधर आओ, अगर गैरुल्लाह के लिए 1 सजदा करोगे हमें 1 लाख देंगे, इधर आओ, ऐसा करोगे हम ये करेंगे, झुक जाएंगे। कौम की कौम मुर्तद हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि कौल साबित उनके पास नहीं है। ईमान जब आता है ना, दिल की गहराइयों में जब उतरता है ना, तो माहौल, आसपास की तकलीफ़ें, मसालिम, शदाइद, इम्तिहान, इब्तिला, आजमाइश, भूखमरी वगैरह वगैरह, कोई भी चीज़ उसको उसके कदम से हटा नहीं सकती। समझे? सहाबे कराम को देख लीजिए आप, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लीजिए। अगर अपने ही जिन्स से देखना है तो बीबी सुमैया को देख लीजिए जी, कितनी तकलीफ़ें दी गई, कितने आजमाइश से 2-4 की गई, लेकिन वो ईमान से हटे नहीं हटे। क्यों? अल्लाह ताला कदम को जमाएंगे, और कदम अल्लाह ताला अगर जो है किसी का ऐसे दबा दे तो पूरी दुनिया वाले हिला सकते हैं उसे जी? नहीं हिला सकते हैं, नहीं डगमगा सकते हैं। इसलिए कौल साबित को अपने दिल में बसाइए, तौहीद के कलमे को बसाइए। एक बच्ची को उसके कुछ लोग देखने के लिए आए, तो उसके खुसर साहब मुर्शद कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा सजदा करो, मैं रिश्ते को मंजूर कर लूँगा। बच्ची आलिमा कोर्स पढ़ रही थी, तो उसने कहा मैं गैरुल्लाह का सजदा नहीं कर सकती। नहीं, ताज़ीम का सजदा है, हज़रत आदम का सजदा फरिश्तों ने किया था, तुम क्या जो है आदम हो? अल्लाह के बंदो, धोखा नहीं देना चाहिए। वो शरीयत दूसरी थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए हैं, इसमें इस तरह का सजदा गैरुल्लाह के लिए हराम है। समझे? बुखारी शरीफ में आपने पढ़ लिया कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदा करने की इजाज़त देता तो बीवी को इजाज़त देता कि अपने शौहर के लिए सजदा करे, लेकिन गैरुल्लाह के लिए सजदा नहीं है। तो अब रिश्ता की लालच में अगर कर ले और उसी वक्त रूह निकल जाए तो
मोमिन मरेगी हो, क्या हुआ? अल्लाह की तौहीद पर, ऐसे रिश्तों पर लात मारना चाहिए, समझे? तौहीद सबसे ऊंची चीज़ है। रिश्ते अगर नहीं मिले, सजदा करा के अगर रोज़ी मिल रही है तो ऐसी रोज़ी की ज़रूरत नहीं है, समझे? हाँ, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज़ में कोताही। उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज़ में कोताही। तो ऐसी रोज़ी खा लेंगे जिससे उड़ना ही नहीं आएगा, भूल जाएंगे तो क्या होगा? मौत अच्छी है। उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तो हमें ऐसा रिज़्क़ नहीं लेना बच्चों। आप लोग आलिमा बन रही हैं, कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं बोलता जा रहा हूँ खाली। हाँ, तो अपने कलमे तौहीद की हिफाजत करना है, इस आयत पर अमल करते हुए। जब ईमान रहेगा तो अल्लाह ताला का यह वादा साबित हो जाएगा। अब ईमान अगर आपका डगमगा जाएगा ना तो ये वादा साबित नहीं होगा। हद्दसना अबुल वलीद क़ाला हद्दसना शुअबा क़ाला अख़बरनी अलक़मत इब्न मरसद क़ाला समिअतु सअद इब्न उबैदा अनिल बरा इब्न आज़िब अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुस्लिमु इज़ा सुइला फ़िल क़ब्र यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। बरा इब्न आज़िब कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कब्र में बंदे से अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से पूछा जाएगा, मान रब्बो का, जवाब दो जल्दी से, पूरा बताना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलिमा हमारा मिशन यही है, समझे? जब ये बोल देंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो सारे सवालात ठंडे पड़ जाएंगे। इज़ा सुइला फिल क़ब्र, जब कब्र के अंदर सवाल किया जाए और मुर्दा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कह देगा, तो यही है युसब्बितुल्लाहु लज़ीना बिलक़ौलि साबित। अल्लाह ताला कब्र में ईमान यानी जो अल्लाह की तौहीद की शहादत और रसूलुल्लाह की रिसालत की शहादत दे देगा तो उसको साबित कदम कर देंगे, तो सारे सवालात आसान हो जाएंगे। फिल हयाती दुनिया, सिर्फ कब्र में नहीं बच्चियों, कब्र में सिर्फ नहीं बल्कि दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। दुनिया की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ पर आदमी मुर्तद नहीं होगा, भूख पर मुर्तद नहीं होगा। सैलाब आए, मिशनरी के या ईसाइयों के लोग आए, लालच देते रहे, नहीं, भूखे मर जाएंगे, लेकिन दूसरों की ऐसी रोज़ी नहीं लेंगे जिससे नान दे, ईमान ले, नान दे। इन्हीं ईमान के बदले में नान नहीं खरीदेंगे, समझे? ईमान के बदले में नान तो जानती हो ना, नानी के घर मिलती हो? हाँ, कहाँ मिलती है? अरे नान रोटी को कहते हैं जी। हाँ, खाने के बदले में ईमान नहीं लेना है, ईमान देकर खाना नहीं लेना है, समझे? तो युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला कौले साबित से दुनिया में भी उसकी कदम जमाएंगे और आखिरत में भी उसके कदम को जमाएंगे। ये पूरी बुखारी शरीफ में सबसे ज़्यादा अहम सबक आपका है ईमान की हिफाजत के लिए। बाब क़ौलिही ताला अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ़रन, उन लोगों को देखो जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफ्र से बदल दिया। मुस्कुराते मुस्कुराते एक लड़की गुज़िश्ता साल नदी में कूद गई थी, मालूम है ना, आयशा नाम की। कैसा उसका वीडियो वायरल हुआ था, जैसे जन्नत में जा रही हो। कहाँ जा रही हो? जन्नत में जा रही हो। तो ऐसे लोग जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफरानी नेमत से बदल दिया, अल्लाह ताला उनका हश्र अच्छा नहीं करेंगे, समझे? अलम तरा इलल लज़ीना, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत को बदल दिया कुफ्र से। अल्लाह ने नेमत दिया था दीन की, अल्लाह ने नेमत दिया था रसूल की, अल्लाह ने नेमत दिया था उससे
रोटी के बदले में ख़रीद लिया, उसे यानी नौकरी के बदले में ख़रीद लिया, उसे शादी के बदले में ख़रीद लिया, कुफ्र को, नाशुक्री को, तो अल्लाह ताला इसे पसंद नहीं करते हैं। अलम तालम का कौलिही अलम तरा के माना में, अलम तरा अलम तालम जैसे होता है ना, हाँ अलम तरा इलल्लज़ीना खरजुल बवारु, खरजु अल बवारु अल हलाक के माना में, अलम तरा की तरह है ना, जैसे अलम तरा, अलम तालम वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। खरजुल बवार, बवार क्यों ने हलाक के होते, वो लोग जो हलाकत की तरफ चले गए, दरिया में कूद गए, कुएं में कूद गए, ट्रेन के सामने कूद गए, समझते कि हम आज़ाद हो गए। शौहर या अपने ससुराल वालों के मज़ालिम से निजात मिल गई। अल्लाह के बंदियों, शौहर का घर अल्लाह ताला ने दिया था उसको जन्नत बनाने के लिए, आपने खुद जहन्नम बना दिया, तो गलती किसकी है जी? आपके कमरे में किसी की मदाखलत नहीं। अगर आप जो है ईमानदारी के साथ उस घर को जन्नत बनाएं तो वाकई चाहे खुसर हो, चाहे सास हो, चाहे नंदें हो, सब आपके कदमों में आ जाएगी। लेकिन लानत ये है कि निकाह के बाद भी हम गैरुल्लाह से रिश्ता रखते हैं। माँ बाप का रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन फ़ोन पर फ़ोन चलते हैं, क्या खाए क्या पिए, आज नाश्ता में क्या था, अरे फलां ने तो मुर्ग खाया मेरे को चटनी दिया, फलां ने ये खाया मेरे को पूछा भी नहीं, बस इख्तलाफात शुरू हो गए। यहीं से जन्नत को आपने जहन्नम बना लिया। जब आपने निकाह के साथ कबिल तो कह दिया है तो रोटी मिले चाहे चावल मिले, चटनी मिले चाहे गोश्त मिले जी, उस पर कनाअत करना है, सब्र करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, तो देखिए वही घर आपके लिए जन्नत बन जाएगा। समझे? नाशुक्री करेंगे, कनाअत नहीं करेंगे तो जन्नत भी जहन्नम बन जाती है। इतनी बात याद रखो, तजर्बे की बुनियाद पर मैं आपसे कहता हूँ, समझे? हाँ, आपकी उम्र के मेरे बच्चे हैं, कहने का मेरे को हक़ है, समझे? अच्छा देखो, अलबवार के माने हलाक, बारा यबूर बौरन, बारा यबूर बौरन, हलाक होना। कौमन बूरा के माने हालिकीन, ऐसी कौम जो हलाक होने वाली है। तो चेहरों की मुस्कुराहट को देखकर ये ना समझें कि ये बहुत खुश है, समझे? हाँ, आगे देखिए, हद्दसना अली इब्न अब्दुल्लाह क़ाल हद्दसना सुफियान अन अमर अन अता समिअ इब्न अब्बास अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ़रन क़ाल हुम कुफ़ारु अहले मक्का। जिन लोगों को खिताब यहाँ किया गया, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत से कुफ्र से बदल दिया? उनके इलाक़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उनके इलाक़े में अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के सरदार को पैदा कर दिया। उनको तो खुशामदीद कहना चाहिए था, उनको कबूल करना चाहिए था, ईमान के दायरे में आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इनकार किया और उस नेमत को उन्होंने कुफ्र में बदल दिया। जब नेमत का इनकार करेंगे, कुफ्र, रसूलुल्लाह का इनकार करेंगे, कुफ्र ही तो होगा। तो अहले मक्का ने रसूलुल्लाह की नेमत का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उनको क्या कर दिया? काफिर बना दिया। बस कीजिए।